السلام علیکم ناظرین، مصر کشمیر میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں حافظ عبدالرسید۔ شروعات سے ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی بنائی گئی نئی حکومت، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے انتخابی جلسے میں کیا دعویٰ۔ کشمیر میں مختلف مقامات پر پشاور میں معصوم بچوں پر بے ایمانہ حملے کے خلاف کیا گیا احتجاج، درندہ صفت حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا کیا مطالبہ۔ اور کپوارہ میں فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان ہوا فائرنگ کا تبادلہ، ایک عسکریت پسند ہوا ہلاک، ایک جوان فوجی بھی زخمی۔ اور یہ تھی ہیڈ لائنز، اب پیش ہے تمام تفصیلات۔ نیشنل کانفرنس کے کارگزار اور صدر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر میں ایک نئی سرکار بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کانگریس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ یہ پارٹی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، جبکہ بی جے پی اور پی ڈی پی کو کراری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جموں حلقوں میں انتخابی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اپنے دم پر ریاست میں نئی سرکار بنائے گی۔ انہوں نے 2014 انتخابات میں پارٹی کی جیت کو یقینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی مخالفین بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر پشاور میں 150 کے قریب معصوم بچوں کی بہیمانہ ہلاکت پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ڈی ڈی سی ڈوڈا شیام ونود مینا کی قیادت میں ایک کینڈل مارچ نکالا گیا، جو قصبے کے مختلف بازاروں سے گزر کر فوارہ چوک پر پہنچا۔ شیام ونود نے پشاور سانحے کی سخت مذمت کرتے ہوئے غمزدہ خاندان والوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور درندہ صفت مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ادھر پلوامہ میں اسکولی طلباء اور طالبات کی جانب سے بھی پاکستان کے شہر پشاور میں معصوم بچوں کی بہیمانہ ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا گیا اور اسی دوران ان طلباء نے درندہ صفت حملہ آوروں کے خلاف زبردست نعرے بھی لگائے۔ احتجاجی طلباء نے کہا ہے کہ رنج و غم کی اس کٹھن گھڑی میں ہم ان معصوم بچوں کے والدین کے ساتھ ہیں۔ جو وہاں پہ انوسینٹ چلڈرنس کو مارا گیا ہے، یہی میسج ہم دینا چاہتے ہیں، مطلب کہ اس ٹیررزم کو اسٹاپ کرے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ڈریں گے اب اسکول جانے سے، اور یہ اتنے مطلب لگ بھگ 144 میٹریلس ہے وہاں ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں سارے یہ، اور بہت سارے ابھی زخمی بھی ہے، تو ابھی پتہ نہیں کتنا ڈیتھ رول آئے گا، تو اس لیے ہم نے ان کو مطلب ان کو جتنا دکھ ہوگا وہ تو ہم نہیں فیل کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ہم ان کو دکھ بانٹنے کے لیے مطلب یہ کر رہے ہیں۔ اسکول سے نہیں، ایکچولی ہم چاٹا پورا سے ایکچولی جو وہاں پہ انوسینٹ چلڈرنس کو مارا گیا ہے، یہی میسج ہم دینا چاہتے ہیں، مطلب کہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے 4 مراحل مکمل ہو چکے ہیں۔ 5ویں اور آخری مرحلے کی پولنگ 21 دسمبر کو ہونے والی ہے۔ ضلع پلوامہ کے 4 حلقوں کے ووٹوں کی گنتی کے لیے ڈی سی آفس پلوامہ میں سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ گنتی کرنے والے ملازمین کو تربیت بھی دی جا رہی ہے، جبکہ دیگر تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ Hello. Hello. So I just request us for ہے اور ایک ہی جگہ رکھا ہے چاروں کانسٹیچوئنسیز کے لیے، اور اسٹرانگ روم بھی ہم نے 4 کانسٹیچوئنسی کے لیے 4 اسٹرانگ روم بالکل اس کے
पास ही रखे हुए हैं। सिक्योरिटी का बड़ा कड़ा इंतजाम है और मैं खुद वैसे तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर तकरीबन रोज जाता हूँ देखने इंतजाम के बारे में, जो बिल्कुल मुकम्मल हैं, फुल प्रूफ हैं। और हमारी जो काउंटिंग 23 तारीख को शुरू होनी है उसके लिए तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनसे और पॉलिटिकल पार्टीज से जो उन्होंने कोऑपरेट किया, मैं इलेक्शन के दौरान अमन शांति रखने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ और आज की मीटिंग करता हूँ। आज भी मैंने उनके कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की मुख्तलिफ पार्टीज के कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की मीटिंग भी रखी हुई है, जिसमें जो उन्होंने हमें ताउन दिया है वोटिंग के दौरान उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना है और उनसे फिर दरख्वास्त करनी है कि वो इसी तरह हमें भरपूर ताउन दें काउंटिंग के दिन, क्योंकि हार जीत तो होती है, एक पार्टी ने जीतना है, एक ने हारना है। तो उस दौरान भी मैंने उनसे दरख्वास्त करनी है यही कि वो उस दिन भी अमन शांति बरकरार रखें, किसी किस्म की वाक़ा। बीजेपी कायद और साबिक रुकन पार्लियामेंट नवजोत सिंह सिद्धू पर सिख नौजवानों की जानिब से हमला किया गया। बीजेपी कायद पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार गोंदर गुप्ता के लिए इंतखाबी मुहिम के लिए जम्मू के इस इलाके में आए थे। वाज़ेह रहे कि सिद्धू ने इसके कबल सिख तबके से ताल्लुक से नाशाइस्ता अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे, जिसकी वजह से सिख नौजवानों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके साथ मौजूद 4 पुलिस एहलकार मामूली तौर पर जख्मी हुए, जबकि सिद्धू आसानी से बचकर निकल गए। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिले कुपवारा में इंतहा पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सिलकोट में वाक़ एक घर में इंतहा पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर RR फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने मुश्तरका तौर पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी, जिसके दौरान एक अस्करियत पसंद हलाक होने की इत्तला हुई, जबकि एक फौजी जवान की भी जख्मी होने की भी इत्तला मिली। इलाके में तलाशी का काम अभी भी जारी है। रात को हमारे पास इत्तला आई थी कि यहाँ पे टाउन के साथ ही एक मोहल्ला है पीर मोहल्ला सलकोट, कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट की मूवमेंट है। अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे प्लानिंग के साथ उसके एरिया को रात को कार्डन कर लिया था, जिसमें आर्मी, CRPF और हमारे पुलिस के लोग थे। तो कार्डन करने के बाद सुबह जब इसकी सर्च शुरू की हमने और कोशिश की कि लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हमें कंफर्म हो गया था कि वहाँ पे मिलिटेंट है। तो जो ही लोगों को बाहर निकालने लगे तो इतनी देर में अंदर से एक मकान जो था उससे फायर आया, जिससे आर्मी का एक जवान इंजर्ड भी हुआ। तो अकॉर्डिंगली फिर जवाबी कार्रवाई की गई जो थोड़ी देर चली। तो जिसके बाद एक मिलिटेंट जो है उसकी डेड बॉडी मिली है, जिसकी आइडेंटिटी अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो बाकी एरिया की सर्च जारी है, तो जो ही सर्च क्लोज होती है तो मुझे ये रात को हमारे पास इत्तला आई थी कि यहाँ पे टाउन के साथ ही एक मोहल्ला है पीर मोहल्ला सलकोट, कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट की मूवमेंट है। अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे प्लानिंग के साथ उसके एरिया को रात को कार्डन कर लिया था, जिसमें आर्मी, CRPF और हमारे पुलिस के लोग थे। तो कार्डन करने के बाद सुबह जब
PDP सरपरस्त और साबिक रियासती वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि BJP को खुश करने के लिए कांग्रेस ने अफजल गुरू को 28वें नंबर से पहले नंबर पर लाकर फांसी पर लटकाया और इसके अहल खाना को मिलने तक की इजाजत नहीं दी गई। मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली है और अब तक के अवामी रुझान के मुताबिक PDP ने 44 नशिस्तों का निशाना हासिल कर लिया है। राजौरी और दरहाल में चौधरी जुल्फकार अली और एडवोकेट कमर हुसैन चौधरी के हक में इंतखाबी रियालों से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत पिछले 6 बरसों के दौरान हर मुहाज पर नाकाम हुई और लोगों के मसाइल हल करने के बजाय हर एक सरकारी इदारे को करप्शन से भर दिया गया। जहां पर DC ऑफिस में जिला इंतजामिया के एक आला सतह इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से नदियों के किनारों से नाजायज तजावुजात हटाने के हुक्म पर तबादला ख्याल किया गया। इस सिलसिले में तमाम महकमों के ओहदेदारान मौजूद रहे। नदियों के किनारे पर मौजूद गैर कानूनी तामीरात को हाई कोर्ट ने फौरन हटा देने का हुक्म जारी किया है। इस काम में तेजी लाने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया था। ये टोटल में था देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में गांधरबल के इलाके में अवाम ने श्रीनगर का गांधरबल नेशनल हाईवे पर बिजली की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी अवाम ने इल्जाम आयद किया है कि पिछले कई दिनों से इलाके में बिजली नहीं है, जिससे अवाम को इन सख्त सर्दियों के अयाम में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के बारे में 6 साल पहले जब अल्लाह की सरकार आई यहाँ तो उन्होंने कहा हम आपको ये तार भी देंगे, ट्रांसफार्मर भी देंगे, लेकिन उसका भी नाम निशान मिल गया, गवर्नमेंट भी खत्म हो गई है। इंशाल्लाह आप नई गवर्नमेंट आएंगे, लेकिन अब तक न तो तार मिला न ट्रांसफार्मर मिला, बिल्कुल नहीं, ना होने के बराबर। तो 3 साल से मुसीबत में हम फंसे, लेकिन 15 दिन से लाइट ही नहीं। राहुल गांधी के स्कीम पे हमें 25 के भी ट्रांसफार्मर दिया गया, वो तो 8 महीने से बेकार है, ना उसको उठाते हैं ना नया देते हैं। ट्रांसफार्मर और तार और क्या बाकी वो सब अपने पास रखे, लेकिन हमें बिजली के लिए ट्रांसफार्मर तार। वादी कश्मीर में आज बुलंद पावा वली कामिल हजरत सुल्तान आरिफीन शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का 540वां उर्स शरीफ निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इसी सिलसिले में मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में शब क़ानी, दरूद व अज़कार व इज्तिमात व मुअज़्ज़मात की रूह पुरूर मजालिस मुनक़्क़िद की गई थी। इनमें मुंजमद करने वाली सर्दी के बावजूद हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। उलमा कराम और आइम्मा मसाजिद ने हजरत शेख हमजा मखदूम की सीरत और रूहानी कमालात बयान किए हैं।
जम्मू कश्मीर इन दिनों सख्त सर्दी की लपेट में है। वादी कश्मीर में भी मौसम सरमा में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। लोग सर्दी से बचाव के लिए कांगड़ी और दीगर गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सर्दी की शिद्दत के बायस नदी नालों का पानी भी जमा हो जाता है। वहीं दूसरी जानिब शदीद सर्दी में आवाम को रसोई गैस और बिजली की अदम फराहमी से दोहरे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दो तीन दिन से सर्दी की लहर बहुत जम गई, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर पानी भी जम गया। इसलिए हमको सुबह लगभग 10-11 बजे तक घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और शाम को भी 3-4 बजे से लेकर बहुत सर्दी पड़ती है। और हमारे पास मतलब ये जलाने के लिए मतलब लकड़ियों का जो देश में ये सैलाब भी आ गया, उससे भी हमारी बहुत सारी जिंदगी परेशानी में मुब्तला हो गई बहुत से गाँवों में और शहरों में। इसलिए आपकी मदद से अगर ऐसा कुछ हमारे बालन डिपो में कोयला आ जाए या बाकी चीज़ आ जाए, जैसे कि सर्दी की लहर से हमारे गरीब गुरबातों का कुछ भला हो जाए, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। खतरनाक टूर क्या खतरनाक टूर बराबर 2-3 दिन से सर्दी की लहर। अनंतनाग में फुटपाथ पर चापड़ी फरोशों के नाजायज कब्जे के बायस आम राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हादसात में भी इजाफा ही होता जा रहा है। फुटपाथ पर कब्जे के बायस ट्रैफिक भी रोज जाम का मामूल बन चुका है, जबकि इस हवाले से शिकायत करने के बावजूद भी जिला इंतजामिया इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। की कमी है कि ये इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। डीसी साहब से अगर पिछली बार भी हमने बोला था, दुकानदारों ने बोला था, यहाँ किसी प्रेसिडेंट ने बोला था, तो उसने कुछ नहीं इसके मुतालिक किया। यहाँ देखिए आप पुल पे कितना भीड़ है, मछली वाले बैठ रहे हैं और यहाँ चलने की जगह नहीं है। गाड़ी वाले आते हैं, सामने गाड़ी रखती जाते हैं और चलने वालों को जगह नहीं होती है। दुकानदारों ने खासकर पटरी सड़कों पर डाली और फिर देखिए गाड़ियां इतनी हो गई, ज्यादा हो गई है, फिर जाम हर वक्त हो रहा है और आम लोगों को, पैदल लोगों को चलने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्किंग के लिए यहाँ पर कोई जगह इनके लिए, गाड़ियों के लिए नहीं है। और जो दुकानदार लोग हैं उन्होंने इस इलेक्शन टाइम का गलत फायदा उठाकर सड़कों पर सारा सामान लगा दिया है, जिसकी वजह से आम लोगों को चलने में बहुत सी दिक्कत होती है। साथ ही साथ गाड़ी की पार्किंग की अवेलेबिलिटी न होने की वजह से उनको बहुत सी। बानिहाल में गुज़िश्ता 3 महीनों से बिजली की अदम फराहमी से अवाम और खासतौर पर तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वादी कश्मीर में सर्दी अपने उरूज पर है। बिजली न होने की वजह से सर्दी से बचाव में मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही है, और दूसरी जानिब बिजली की अदम फराहमी ने भी तलबा को भी सख्त मुश्किलात से दो चार कर रखा है। इलाके के अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह बानिहाल में जल्द अज जल्द बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। के बाद जो पावर के हालात इस वक्त बहाल में है, इसकी वजह से इस वक्त पूरा जो यहाँ का तासीर पूरी तरह से परेशान है। और यहाँ पर जो इन्होंने कंटेनमेंट सिस्टम बनाया है वो अननेसेसरी है। उसमें कोई सिस्टम नहीं रखा है इन्होंने कि कब काटेंगे कब रखेंगे। यहाँ पर जो हमारा ये कारोबारी तबका है जो इस वक्त प्रॉपर टाउन में काम कर रहा है, हमारा सारा सिस्टम इस वक्त बिजली पर ही है। इसमें भी ये परेशानी रहती है कब आएगा कब नहीं आएगा। और साथ में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को भी परेशानी हो रही है, और साथ में ये भी है कि अभी सर्दियाँ आने वाली है और यहाँ पर जो बिजली की परेशानी अगर सर्दियों में ऐसे रही तो यहाँ का जो जीना हराम हो जाएगा। में जो मेन जिम्मेदार है वो यहाँ बिजली डिपार्टमेंट है, जो यहाँ पर मतलब इस वक्त इन हालातों में लोगों को डाल रहे हैं। और बिजली जो बिल वगैरह का सिस्टम है, ये तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया है, चाहे कोई चलाए ना चलाए, घर में तो बिजली भेजनी है, ये बिल तो भेजनी है, पैसा तो भरना है। एक तरफ से बेरोजगारी ने मारा है, दूसरी तरफ से हमें बिजली बिलों ने मारा है। यहाँ पर जो यहाँ पर नागानी आफत जो फ्लड आया था, उसके बाद जो पावर के हालात इस वक्त बहाल में है, इसकी वजह से इस वक्त
नाज़रीन, मुंसिफ कश्मीर में फिलहाल इतना ही है। मुंसिफ टीवी पर दीगर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।